News Services Division of All India Radio presents Money Matters. देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम About savings, investments, borrowings and taxations. हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण On our digital platforms. सुनना न भूलें हर रोज शाम 4:05 से 4:30 तक. Money Matters. Good evening and welcome to the Saturday edition of Money Matters, a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms. A program in which we bring you information on personal finance like savings, investments, borrowings and taxation. Today's topic is types of mutual funds. You can send your queries regarding this topic on email ID moneymatters.air@gmail.com, or alternately you could send your questions in the comments section of the YouTube channel on which you are currently listening to today's program. My name is Rajesh Lake and my co-anchor in Hindi is Amrish Saxena. नमस्कार, मनी मैटर्स में आपका स्वागत है. देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़े इस कार्यक्रम में हम रोज एक निर्धारित विषय पर अपनी चर्चा केंद्रित करते हैं. आज का विषय है म्यूचुअल फंड के विभिन्न प्रकार. श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके प्रश्न भी शामिल करते हैं. प्रश्न भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है moneymatters.air@gmail.com. आज के कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल. यामिनी, मनी मैटर्स में आपका स्वागत है. Welcome, Yamini. Thank you. Yamini, just a quick recap on our last program where we discussed as to what are mutual funds and what it means when we say equity schemes. So if you could recap, what are mutual funds? So when we talk about mutual funds, they are a financial instrument which basically pools the investments of the different investors in a form of a corpus, which is given to a special purpose vehicle, and this particular special purpose vehicle, which is also called the asset management company, then invests these particular funds to different securities, which include equity, debt, or different other instruments with different maturities, primarily to earn returns and give it to the investors. The prime benefit of a mutual fund is that different investors with small amounts can come together, pool their funds, and can buy different securities at different rates as well as in large volumes. Besides that, the portfolio manager who's managing the mutual fund tends to see that where he can invest, that the returns can be best according to the investment horizons and the goals of the investor. And these particular returns are primarily beneficial for small investors. As far as mutual fund categories are concerned, since mutual funds can decide as to where they can invest their corpus, that means where would they actually, which kind of securities would they buy, the SEBI identified 36 categories in which you can actually bring about these investments, or you can bring about the offerings of mutual funds. So these were equity schemes, debt schemes, hybrid schemes, solution-oriented schemes and other schemes. There were overall 36 such schemes which were there. So in the previous program we discussed what were the different types of equity schemes which were there. Primarily when the mutual fund invests in equity-oriented stocks, which may be large cap, mid cap or small cap stocks, we usually call them equity schemes. So what does equity per se mean? So when a company actually raises funds, it can raise funds in the form of owner's capital, which is referred to as the equity shares, which continue to be there with the company till perpetuity, or as since it's a going concern, will continue to be there invested till the company gets liquidated. On these particular funds, the company usually gives dividends, or if a person when sells these particular securities to somebody else, can gain capital appreciation. The other way of raising capital for a company is through debt securities, whereby it procures a certain amount of a loan at an interest rate or a coupon which is there, and promises to repay this particular debt within a specified maturity period. And for the time period which it takes up this loan,
it promises to pay periodic payments in the form of interest payments. So in equity, we don't have a certain amount of payment, a guaranteed payment which is there, because a company may earn profits or may not earn profits, and if it earns profits, then it may decide to distribute these profits in the form of dividends. But whether a company earns profits or losses, if it has taken up a loan, it is to pay a certain that particular promised rate of interest to the investors that is there. So we usually say equity returns are not guaranteed. However, the debt returns are guaranteed. If the company defaults on the debt payments, one can take them for liquidation in the courts. यामिनी, अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिहाज से आपसे सवाल पूछूं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो वो किस तरह की सावधानियां बरतें और कैसे ये तय करें कि आपने जैसे विभिन्न प्रकार के जो म्यूचुअल फंड्स बताए, कहां से शुरुआत करें, किस तरह के म्यूचुअल फंड करें, खरीदें, किस तरह से उनको आगे बढ़ना चाहिए? जी, सबसे पहले तो अपना इन्वेस्टमेंट गोल आइडेंटिफाई करें और बेस्ड अपॉन आपकी एज क्या है और आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, उसके बेसिस पे म्यूचुअल फंड डिसाइड किए जाते हैं. अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है और आप कम उम्र के हैं, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करना बेहतर रहता है. और अगर आपकी एज काफी 50 से ऊपर है और आप एक फिक्स्ड पर्टिकुलर रिटर्न चाहते हैं और रिस्क अवर्स हैं, तो डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट्स बेटर रहती हैं. अगर कुछ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन या कोई पर्टिकुलर पर्पस की वजह से आप रिटर्न चाहते हैं, जैसे अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहते हैं या एक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स होती हैं, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है. उसमें भी जैसे आप इक्विटी स्कीम चूज करें या डेट स्कीम चूज करें, उसमें भी वेरिएशंस हैं. जैसे इक्विटी में 10 कैटेगरीज हैं और डेट में 16 कैटेगरीज हैं. इन कैटेगरीज में तब डिफाइन किया जाता है बेस्ड अपॉन कि आप कौन सा रिस्क लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं. अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते और लेकिन आप पोटेंशियल गेन्स चाहते हैं, तो आप इक्विटी के लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. और अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क या ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और रिटर्न्स उसी के हिसाब से चाहते हैं, तो आप स्मॉल और मिड कैप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो आप रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या सलाह देंगी कि वो ये सारा जो हम जिस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या और भी कुछ स्रोत ऐसे होंगे जहां से वो पढ़ाई करें और उसके बाद इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें, कहां से सूचनाएं ले सकते हैं हमारे? जी, किसी भी एएमसी में उनके जो स्कीम्स होती हैं उसके अंदर मेंशन्ड होता है, उनके जो न्यू ऑफर्स होते हैं उसके अंदर भी मेंशन्ड होता है कि वो स्कीम कहां पे इन्वेस्ट करेगी और वो कितने आपको बेंचमार्क रिटर्न्स देगी. ये रिटर्न्स कहीं पे भी कोई भी म्यूचुअल फंड गारंटी नहीं करते, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का जो रिटर्न है वो मार्केट रिस्क पे डिपेंड होता है, क्योंकि वो मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं और कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं होता. तो वो आपको ये नहीं कह सकते कि हम इतना रिटर्न आपको स्पेसिफिकली देंगे. तो डिपेंड करता है कि आप कितना रिटर्न चाहते हैं और आप कितना रिस्क लेना चाहेंगे उसके ऊपर कि आप किस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट करें. हर एक म्यूचुअल फंड एएमसी को राइट होता है कि डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स निकालें. कुछ ओपन एंडेड स्कीम्स होती हैं और कुछ क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं. ओपन एंडेड स्कीम्स में आप कभी भी एंटर और एग्जिट और रिडीम कर सकते हैं अपनी यूनिट्स, और क्लोज एंडेड स्कीम्स में जब न्यू ऑफर आता है, तो न्यू फंड ऑफर आता है, उसमें आप तब इन्वेस्ट कीजिए और जब वो मेच्योरिटी पहुंचेगी तभी आप उसको रिडीम कर सकते हैं, तभी आपको आपका पैसा वापस मिलेगा. Yamini, for the benefit of our larger audience, if you could explain in Hindi about equity and debt. जी, जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो जब कंपनी पैसा लेती है जिसके अंदर वो जो पैसा दे रहा है वो कंपनी का ओनर बन जाता है, उसे इक्विटी शेयर्स कहते हैं. लेकिन जब कंपनी पैसा उठाती है और वो एक लोन की तरह उसे उठाती है, तो उसे आप डेट कहते हैं. जब आप ओनर फंड्स की तरह रेज करते हैं, तो आप उनको कहते हैं कि जब मेरा मुनाफा होगा तो मैं उस मुनाफे में से अगर मैं उसको जो है आपको बांटूंगा, तो उसे डिविडेंड्स की तरह उसे मैं बांटने को तैयार हूंगा. लेकिन जब आप लोन की तरह उठाते हैं, तो कर्जे की तरह जिसे हम कहते हैं उठाते हैं, तो आप उसके ऊपर एक ब्याज दर निर्धारित कर देते हैं और एक समय सीमा भी निर्धारित कर देते हैं जिसके बाद आप उस पैसे को वापस कर देंगे. इक्विटी में पैसा कभी भी वापस नहीं मिलता. आप अपने इक्विटी शेयर्स एक जने से दूसरे जने को बेच सकते हैं, जिसमें आपको मुनाफा हो सकता है. और डेट के अंदर आप जो है बेच भी सकते हैं और आप रुक सकते हैं जब तक
उसकी मेच्योरिटी नहीं होती. इक्विटी में कोई परमानेंट या गारंटीड रिटर्न नहीं होता, क्योंकि वो कंपनी के ऊपर डिविडेंड्स पे डिपेंड करता है, और आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन, जैसे हम कहते हैं कि जो हमने मूल लगाया है उसके ऊपर जो पैसा बढ़ा, उसका फायदा या लाभ मिलता है. डेट के ऊपर आपका एक निर्धारित ब्याज मिलता है जो आपको मुनाफा देता है. Okay, if we were to divide the goals which you mentioned a while back into non-negotiable goal and negotiable goals, then the short-term goals will come under the debt scheme? It's not short-term or long-term goals it is there, which defines the equity versus the debt. What defines the equity versus the debt is the risk profile and the specific goal of earning potential returns through wealth maximization. So people who are looking in for potential gains and wealth maximization would go in for an equity scheme and who are likely to take more risk. The ones who are risk averse and who want safer returns and secured returns are more likely to go in for debt securities. So is there a one-day kind of maturity fund also? There are mutual funds which actually invest in overnight securities, which are overnight securities, which we mean that the securities which will mature after a night or so. So this particular overnight fund which we have is an open-ended debt scheme which is there, whereby the investments can be made in these securities, but they are primarily for financial institutions or banks because they have surpluses at the end of the day which can stand invested into mutual funds which will invest into these securities. यामिनी, हाइब्रिड फंड क्या होते हैं? हम काफी इसके बारे में सुनते रहते हैं. तो जी, हाइब्रिड फंड्स वो होते हैं जो इक्विटी और डेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और उनका प्रोपोर्शन डिफरेंट होता है. इनकी कैटेगरीज होती हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स, ऐसे टाइप के फंड्स होते हैं. पर इनका जो डिवीजन होता है वो प्राइमरीली मिक्स होता है इक्विटी और डेट के अंदर. So if one wants to invest for a short-term goal, for say buying a car, so should one go in for the liquid fund? Well, if yes, then what is a liquid fund? A liquid fund is when a mutual fund actually invests into money market securities. Money market securities are securities like commercial papers or treasury bills, which are likely to mature within a period of 1 year. So the purpose of overnight funds or liquid funds are that they are least risky in terms of all the debt schemes that are there, and they are primarily for institutions or banks, whereby since they have surplus funds and they want to make money and returns on those surplus funds, they can then invest into these mutual funds. There are also open-ended liquid schemes that are there. Okay, what about the ultra-short duration fund? So what happened is when the debt schemes were there, these particular schemes were defined in terms of the investments which were supposed to be made in securities over a certain period of time. So when SEBI was bringing about the categorization of these 36 categories, including the equity and the debt, where these different categories were there, they defined the mutual funds based upon what we call as a Macaulay's duration. So when we talk about Macaulay's duration, it is basically a portfolio manager tool whereby we find the weighted average of the weighted average term to maturity of the cash flows of the bonds, which in very simple language is basically telling you as to how much time will it take for your investment to come back to you. Also, it is a way of identifying as to how much is the particular bond sensitive to the price changes that are there. It also indicates to the investor primarily how much time is the price risk and the market risk offsetting each other. So based upon the Macaulay's duration, they divided funds into ultra short duration, low duration, and the others. So when we talk about ultra short duration, it is investment into debt and money market instruments, such that the Macaulay's duration of the particular portfolio which they create should be between 3 to 6 months. So it is a shorter duration. So when you look at Macaulay's duration, we usually say that the duration will be able to identify for an investor as to how much risk is he willing to take. For longer durations, they can be higher returns provided the interest rates soften.
where the interest rate is continuously rising, it is better to take a shorter duration fund which is there. Okay, we'll be taking a short break at this point of time. You are listening to Money Matters on News on AIR official YouTube channel. You may ask questions in the comment section of the YouTube channel or through our email ID moneymatters.air@gmail.com. मनी मैटर्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के विभिन्न प्रकार पर। हम श्रोताओं को याद दिला दें कि कल इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य बीमा पर चर्चा होगी। यामिनी, आपने हमें विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया और अभी आपने जिक्र किया बीच में एक रिटायरमेंट फंड के बारे में। ये रिटायरमेंट फंड क्या है? क्या ये उसी तरह की स्कीम है जैसे कि जो रिटायरमेंट के बाद लोग पेंशन स्कीम वगैरह लेते हैं? क्या उसी तरह के लाभ इस म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं? तो सेबी ने कैटेगरी दी है सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स की। उसके अंदर एक फंड है जिसका नाम है रिटायरमेंट फंड। इसमें लॉक इन पीरियड 5 साल का है या जब तक आपकी रिटायरमेंट एज नहीं होती। ये भी एक ओपन एंडेड स्कीम है। बेसिकली आपको रिटायरमेंट के पास कितना पैसा चाहिए होगा उसके अंदर वो फंड में पैसा निवेश किया जा सकता है और फिर वो आपको पैसा आपके रिटायरमेंट के टाइम पे या 5 साल बाद आपको दे दिया जाएगा, जो भी उससे पहले होगा, रिटायरमेंट एज या फिर आपके 5 साल पहले। ओके, तो यामिनी, डेट फंड की चूंकि हम बात कर रहे थे आपसे, तो मनी मार्केट फंड्स के बारे में आप कुछ जानकारी श्रोताओं को देना चाहेंगे? जैसे हमने कहा कि म्यूचुअल फंड्स मनी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कमर्शियल पेपर्स हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेजरी बिल्स जिनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल तक है और वो ओपन एंडेड स्कीम है, उसे मनी मार्केट म्यूचुअल फंड कहेंगे। और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड भी क्या इसी से जुड़े हुए हैं या उनका? जैसे हमने कहा एक अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, एक लो ड्यूरेशन फंड है, वैसे ही शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है। जैसे हमने कहा मीडियम भी है। तो ये जो कैटेगराइजेशन की गई है, ये कैटेगराइजेशन सेबी ने मैकॉलेट ड्यूरेशन पे की है। मैकॉलेट ड्यूरेशन जैसे मैंने आपको समझाया बताता है आपको कि आपको कितने टाइम में आपका इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगा। जो बॉन्ड की प्राइस है उसके की वो जो बॉन्ड प्राइस आपने इन्वेस्ट की है वो कितने टाइम में आपको वापस मिल जाएगी। तो जैसे अल्ट्रा शॉर्ट में 3 से 6 महीने का मैकॉलेट ड्यूरेशन रखते हैं पोर्टफोलियो का। लो ड्यूरेशन में मैकॉलेट ड्यूरेशन पोर्टफोलियो का 6 से 12 महीने रखते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन में आपका जो मैकॉलेट ड्यूरेशन है वो बढ़कर के 1 से 3 साल हो जाता है। जैसे जैसे ये मैकॉलेट ड्यूरेशन बढ़ता है, जैसे हमने कहा, प्राइस सेंसिटिविटी आपके पोर्टफोलियो की बढ़ती जाती है। क्योंकि बॉन्ड प्राइसेस आपकी इंटरेस्ट रेट से इनवर्सली रिलेटेड है। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ते हैं और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड प्राइसेस कम होते हैं। तो उसकी सेंसिटिविटी आपके यील्ड्स, जो आपका रिटर्न है जिसे हम कहते हैं एक बॉन्ड के ऊपर, उस पर निर्भर करता है। तो उस सेंसिटिविटी को मेजर करने के लिए मैकॉलेट ड्यूरेशन को यूज किया जाता है और इन्वेस्टर को बताने के लिए कि वो इन्वेस्ट करें लॉन्गर ड्यूरेशन में अगर उसे ज्यादा रिटर्न चाहिए, जब इंटरेस्ट रेट खासतौर पे कम होते जा रहे हों, जिसे हम कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ द इंटरेस्ट रेट। You're talking quite a bit about bond. So what are the bond funds? If you were to define the bond funds, so what are bonds? So bonds are nothing but a security in which you can invest, whereby the corporates or the companies tend to raise funds in the form of loans from them, and they give you a security which has different components which specify basically as to what is the maturity period, what is the coupon rate, and how many times would the compounding be done, and so forth. तो कौन से ऐसे फंड्स हैं, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की हम बात करते हैं, या इस तरह के और कौन से फंड्स के बारे में आप जानकारी देंगी? तो ऐसा ही है, मीडियम और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड भी होते हैं जिसके अंदर मैकॉलेट ड्यूरेशन 4 से 7 साल होती है। एक लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम फैक्टर से ये लोग अलग हो जाते हैं, ये फंड्स अलग हो जाते हैं। जो मैकॉलेट ड्यूरेशन है, जैसे मैंने कहा कि उसके बेसिस पे कैटेगराइजेशन होती है और आप किस तरह के इन्वेस्टर और कितना रिस्क लेना चाहेंगे और किस तरीके से अपने
अपने रिटर्न्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे उस पे निर्भर करेगा कि आप कौन से म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करें। तो जैसे अगर आप अपना पीरियड लंबा रखना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है इंटरेस्ट रेट सॉफ्टन होंगे और प्राइसेस बढ़ेंगी जिसकी वजह से आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है जिसके मैकॉलीज ड्यूरेशन 7 साल है। डायनेमिक बॉन्ड है जिसके अंदर आप कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन नहीं रखते, आप बहुत सारी ड्यूरेशंस के साथ मिक्स मैच करके अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं ताकि आप हायर रिटर्न कर सकें। ऐसे ही कुछ फंड्स हैं जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है या क्रेडिट रिस्क फंड है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ये कहते हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें जो आपका कॉर्पस होगा और म्यूचुअल फंड 80% अपना कॉर्पस जो है AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा। ये भी एक ओपन एंडेड स्कीम होगी जिसके तहत इन्वेस्ट होगी। इसके पैरेलल जब आप एक कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट करते हैं जो AAA रेटेड नहीं है पर कम रेटेड है, उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो क्रेडिट रिस्क फंड में होती हैं। उसमें 65% ऑफ द कॉर्पस जो म्यूचुअल फंड का है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होगा, तब उसे क्रेडिट रिस्क फंड कहलाया जाएगा। यामिनी, गिल्ट फंड क्या है? गिल्ट सिक्योरिटीज आपकी होती हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। सो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे जो रिटर्न आपको मिलता है वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि सरकार कभी भी जो है डिफॉल्ट नहीं कर सकती। जो कॉर्पोरेट्स के बॉन्ड्स हैं वो हो सकता है कि वो आपको पेमेंट ना कर पाए इंटरेस्ट की या प्रिंसिपल की, पर गवर्नमेंट के साथ ऐसा नहीं होता। जब वो गवर्नमेंट जो रेट ऑफ रिटर्न देती है, क्योंकि वो रिस्क फ्री रिटर्न होते हैं, वो सबसे ज्यादा रिस्क फ्री एसेट्स होते हैं। जब एक म्यूचुअल फंड 80% अपने कॉर्पस का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है तो उसे हम गिल्ट फंड कहते हैं। So what about the banking and the PSU funds? जैसे सिक्योरिटीज की हमने बात की तो हम कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कॉर्पोरेट्स में भी आप डिवीजन कर सकते हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं और बैंक हैं, एक पर्टिकुलर सेक्टर हो जाता है। अगर आप इनके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें 80% आपका फंड इन्वेस्ट होगा, उसे आप बैंकिंग एंड PSU फंड्स में कहेंगे। अभी लेटली एक ETF भी आया था, अगर आपने देखा हो, भारत बॉन्ड, जिसमें उन्होंने कहा था AAA रेटेड पब्लिक बॉन्ड्स के अंदर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बॉन्ड्स के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे और एक 3 ईयर की और 10 साल की मैच्योरिटी दी गई थी। ऐसे ही बहुत सारे और फंड्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स लाते हैं जिसमें वो स्पेसिफाई करते हैं कि किस PSU के अंदर या किस बैंकिंग सेक्टर में वो इन्वेस्ट करेंगे। यामिनी, जब भी कोई भी रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसका एक कंसर्न ये भी रहता है कि इनकम टैक्स में उसको किस तरह का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये जितने भी डेट फंड्स हैं, क्या इनमें इनकम टैक्स में जो भी लाभ किसी रिटेल इन्वेस्टर को चाहिए वो सारे लाभ मिलेंगे या क्या नियम है इनके? जी, डिविडेंड्स पे जितनी पेमेंट्स होती हैं वो आपका म्यूचुअल फंड ही पे करता है, तो आपको पे नहीं करना पड़ता। अगर आप सिक्योरिटी को लंबे पीरियड के लिए अफोर्ड करते हैं तो आपको उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे करने होते हैं। शॉर्ट टर्म के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपको पे करने होंगे, जो भी आपका गेन होगा उसके तहत। और जब आप टैक्स में सेविंग्स करते हैं तो 1,50,000 तक आप टैक्स के अंदर सेविंग कर सकते हैं। So who should invest in equity and who should go in for the debt schemes? इक्विटी में वो इन्वेस्ट करें जो पोटेंशियली रिस्क लेना चाहते हैं और जिन्हें रिटर्न्स की ज्यादा उम्मीद है, और डेट में वो लोग इन्वेस्ट करें जो एक सेफर सेट ऑफ रिटर्न्स चाहते हैं और एक कंटिन्यूअस सेट ऑफ रिटर्न्स चाहते हैं। उनके लिए फायदेमंद रहता है। जो थोड़े कम रिटर्न के साथ काम चलाना चाहेंगे पर एक सेफर रिटर्न चाहेंगे। और यामिनी जी, अगर हम और फंड्स की बात करें तो एक फंड है फ्लोटर फंड। क्विकली अगर हम ये बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर एक फिक्स्ड रेट रिटर्न होता है या फ्लोटिंग रिटर्न होता है। अगर फिक्स्ड इन्वेस्ट रेट होता है, जैसे 8% रिटर्न ही सारे मेच्योरिटी पीरियड तक मिलेगा। अगर उसे बदलते रहते हैं हर साल, उसे फ्लोटिंग रेट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और अब चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। यामिनी जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और म्यूचुअल फंड्स के इतने सारे विविध आयामों के बारे में हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Yamini. Thank you. And before we close, a reminder on tomorrow's topic of discussion. It will be on health insurance. That's all we have in this edition of Money Matters. Till tomorrow, goodbye.